judiciary under India's ruling dispensation. Restoration of statehood, conduct of state assembly elections, or similar steps cannot serve as a substitute to the grant of right to self-determination of the Kashmiri people. The judgment cannot distract the international community's attention from the gross and systematic human rights violations being perpetrated by India in IIOJK. India's unilateral and illegal measures since 5th August 2019 have been aimed at changing the demographic structure and political landscape of IIOJK. In flagrant violations of international law and the relevant UN Security Council resolutions, especially Resolution 122 of 1957. They remain a matter of grave concern for Pakistan, as their ultimate goal is to convert the Kashmiris into a disempowered, disenfranchised community in their own land. These measures must be rescinded to create an environment for peace and dialogue. Pakistan will continue to extend its full political, diplomatic, and moral support to the people of IIOJK for the realization of their right to self-determination. With this statement, I'll be happy to respond to the question that you may like to make. Thank you so much, sir. Sumera Khan from Summer Television. Sir, future course of action Pakistan का क्या होगा? Diplomatically we have been very active, मगर मुख्तसर अगर पाकिस्तान की आवाम जानना चाहिए इस फैसले के बाद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का क्या रिएक्शन होगा? Kinetic, strategic, whatever, क्या इसमें possibility? जी, we will certainly, as I mentioned, that this is our initial reaction to this development, which has taken place a short while ago by the Indian Supreme Court. We will convene a meeting very soon of all stakeholders, and we will also decide on the future course of action in that meeting. As I mentioned, that following the 5th August 2019 Indian illegal action, we had launched a campaign internationally, which and we received an endorsement by the international community. The issue was also debated in the UN at the United Nations level. We will certainly write to the United Nations Secretary General, OIC Secretary General, the European Union Parliament, basically apprising them of the futility and this decision, illegality. We will point out the illegalities and the contradictions that are there in this decision. Similarly, we will also, with the help of, we will also apprise of the latest developments and consult with the leadership of all political parties on this very important issue. कश्मीर का इशू जो ऑलरेडी सिक्योरिटी काउंसिल में है, पाकिस्तान के पास और फोरम क्या बचता है कि पाकिस्तान अपना केस किस लेवल पे और मजीद लेके जा सकता है? उसमें एक तो ये है कि आपने बिल्कुल सही कहा कि ये एक जो है, it is the longest, one of the longest issues on the UN Security Council agenda. Or despite attempts by India for the last several decades to basically dilute the impact of the UN Security Council resolutions, we have
taken appropriate diplomatic steps in order to maintain the sanctity of the relevant UN Security Council resolutions. The UN Security Council resolutions are sacrosanct, and they will remain on the agenda of the UN Security Council agenda for as long as they are implemented in accordance with the resolutions which have been passed in the past and in accordance with the aspirations of the people of. As I mentioned, that we are in the process of interacting with all the stakeholders, and any other option, we will consider all options after consulting with the relevant stakeholders. Excellency, our concerns are there, but Prime Minister Narendra Modi, he tweeted on this verdict, and he said it has fortified unity, progress of people in Kashmir. So how Your Excellency responds to his observation, whether it's going to further unify the Kashmiris into the Indian Union? And secondly, since there is also general election coming up, I remember Pulwama in 2019 and other, problems. Do you foresee any linkages between this development to his bid for a hat-trick? Thank you. ایک تو پراچا صاحب، جس طرح میں نے مینشن کیا اپنی اسٹیٹمنٹ کے اندر بھی، کہ انفارچونیٹلی جو انڈیا کی جو سپیریئر جوڈیشری ہے، دیٹ ہیز بیکم اے پلائنٹ جوڈیشری. پلائنٹ ان دا سینس کہ جس طریقے سے انہوں نے بابری مسجد کا جو ورڈکٹ دیا تھا، بابری مسجد کا ورڈکٹ بھی جو انڈین سپریم کورٹ نے دیا تھا، وہ دیٹ واز ان وائلیشن آف آل دی ہسٹوریکل فیکٹس. سملرلی یہ جو سا ورڈکٹ آیا ہے، دس از اگین ایز مینشن ان مائی اسٹیٹمنٹ، یہ بھی اٹ از دی ورڈکٹ آف اے پلائنٹ جوڈیشری. Unfortunately, the credibility of the Indian Supreme Court has also been compromised for the last several years, particularly ever since the advent of the current leadership in India. اور اس کی وجہ سے آپ نے دوسرا جو بات کی پرائم منسٹر مودی کی ٹویٹ کے بارے میں، تو پرائم منسٹر مودی کی یہ کہ جی اٹ از سولیڈیفائی دی یونٹی آف، تو اس میں تو آپ نے دیکھا کہ 5 اگست 2019 کے بعد بھی اس قسم کی بات کی گئی، لیکن وہ آج تک اس بات کو بھی تقریباً 4 سال سے بھی زیادہ عرصہ گزر چکا ہوا ہے، لیکن مقبوضہ کشمیر کے اندر کوئی بھی نہ ہی رول آف لا ہے، نہ ہی وہاں پر شخصی آزادی ہے، اور وہاں پر جس قسم کی جو وائلیشنز ہیومن رائٹس کی گئی ہیں، اس کو پوری دنیا نے ایکنالج کیا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ 2018 کے اندر یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس کی جو کمشنر نے انہوں نے جو رپورٹ دی تھی، اس کے اندر انہوں نے واضح طور پہ ایک ڈیمانڈ کی تھی کہ ایک کمیشن آف انکوائری should be established to determine the human rights violations which are taking place in the Indian occupied Kashmir. لیکن unfortunately بدقسمتی سے وہ جو ہیومن رائٹس کمشنر کی وہ جو رپورٹ ہے، اس کے اوپر بھی عمل درآمد نہیں ہوا. اسی طریقے سے OIC کا ایک آبزرور مشن ہے جو کہ وہ جانا چاہ رہا تھا مقبوضہ کشمیر کے اندر، تو اس کی بھی بارہا ریکویسٹ کے باوجود کوئی بھی ان کی ہندوستان کی طرف سے. آبویسلی یہ اگر میں تو ان کی بات پہ تب یقین کرتا اگر وہ وہاں پر انٹرنیشنل آبزرورز کو آنے کی اجازت دیتے، انٹرنیشنل میڈیا کو وہاں پر مقبوضہ کشمیر میں آنے کی اجازت ہوتی، تو اس کے بعد پھر دیکھا جاتا کہ وہاں پر کس قسم کی یونٹی ہے. ہماری اپنی پرسیپشن کے مطابق اور تمام کشمیریوں کے مطابق انہوں نے تو وہ نہ صرف پچھلے ایکشن کو انہوں نے ریجیکٹ کیا، بلکہ انہوں نے جو ڈیسیژن ہے اس کو بھی انہوں نے اپنا سارا یونیورسلی انہوں نے اس کو بھی ریجیکٹ کیا ہے. You said it has no legal status, this verdict, but again, the Supreme Court verdict itself speaks something very special.
On international level, how would you, Pakistan, present this case for Kashmiris? Also tell what would be the role of International Court of Justice? देखिए जी, बात यह है कि जब मैं कहता हूं कि इसकी कोई लीगल वैलिडिटी नहीं है, तो ये ही बात जो इंडिया के जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं वो भी इसी के बारे में यही कह रहे हैं, और वो उनके मुताबिक देयर इज़ ए कंट्रडिक्शन which is coming out very very clearly in the current decision of the Indian Supreme Court, as well as the decision that the Indian Supreme Court had taken in 1973. In 1973 के अंदर वो केशवंत भारती केस के अंदर इंडियन सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला है जिसके मुताबिक उन्होंने ये कहा है कि उनको जो पार्लियामेंट को कश्मीर से रिलेटेड वो जो उसके पार्लियामेंट को अख्तियार नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन को वो उसको अमेंड करने का। तो अगर वो वाला जो सा डिसीजन उसको एक्सेप्ट किया गया था, तो यहाँ पे उसको कैसे आप वैलिडेट कर सकते हैं? तो मेरा कहने का मकसद है कि कंट्रडिक्शन तो बेशुमार है, और यही बात जो सी है इंडियन लीगल एक्सपर्ट्स भी वो पॉइंट आउट कर रहे हैं। मुझे ये बताइए कि पहले ये फैसला हुआ और इसके बाद अभी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद आप फोर्स क्या करते हैं कि जो पीस है लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर ये मेंटेन रह सकेगा? हमने देखा कि कुछ अर्सा जो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर बड़ा अमन रहा, कश्मीर के अंदर भी कोई इस तरह की रिपोर्ट्स नहीं आई कश्मीर जो वायलेंस की, तो आप समझते हैं कि ये पीस कायम रहेगा? आपकी एज ए डिप्लोमेट आपकी ऑब्जर्वेशन? जी, हमारी तो कोशिश होगी कि ये लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो पीस पिछले कोई 2-3 साल से वो अपना एक पीसफुल सिचुएशन है वो कंटिन्यू करें। कश्मीर के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा का कोई खास वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं आ रहा, तो पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा से मक़बूज़ा कश्मीर के हवाले से मुतालबा क्या है और इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? जी, पाकिस्तान का जो मक़बूज़ा कश्मीर के हवाले से यूनाइटेड नेशन से मुतालबा यही है कि वो इंडिया को मजबूर करे कि वो अपनी जो करारदादें हैं उनको इम्प्लीमेंट करवाए वहाँ पे हिंदुस्तान की। दूसरा, आपने कहा कि उनकी तरफ से कोई वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं आया, तो मैंने अभी पिछले सवाल के जवाब में मैंने बताया था कि सिर्फ अभी चंद बरस पहले ही यूनाइटेड नेशंस के ही कमिश्नर ने, ह्यूमन राइट्स के कमिश्नर ने ये वाज़ेह तौर पे ये कहा था कि कमीशन ऑफ इंक्वायरी शुड बी सेंट टू मक़बूज़ा कश्मीर टू इन्वेस्टिगेट द मैसिव वायलेशंस ऑफ ह्यूमन राइट्स व्हिच आर टेकिंग प्लेस इन इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर। किया गया था, तब भी हमने देखा कि मोदी सरकार ने दुनिया की सबसे बड़ी जेल में मकबूजा जम्मू कश्मीर को तब्दील कर दिया था, और अब भी हमने देखा कि 2 रोज़ कबल कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में सेक्शन 140 का नफाज किया गया। इस हवाले से सर आपका मौक़िफ़ क्या है, और जो कश्मीरियों पर जुल्म बढ़ जारी है उस हवाले से पाकिस्तान दुनिया की तवज्जो दिलाने के लिए आगे मज़ीद क्या इक़दाम करने का इरादा है? जी, हमारी तो ऑब्वियसली जिस किस्म की वहाँ पर जुल्म और बरियत की जो एक नई दास्तान मुरतब की गई है मक़बूज़ा कश्मीर के अंदर, न सिर्फ पिछले 4 साल से जिस अरसे में तब से तो बहुत ज़्यादा तेज़ी आ गई है वहाँ पर, लेकिन मैं समझता हूँ कि 1947 से जिस चक्की में पिस रहे हैं कश्मीरी, तो उसका कोई मदावा होना चाहिए, और उसके मदावे की सिर्फ एक ही सूरत है कि यूनाइटेड नेशंस वहाँ पर एक ऑब्ज़र्वर ग्रुप भेजे, और वहाँ पर जिस तरीके से उनकी ह्यूमन राइट्स की कमिश्नर ने अपना एक 2018 में कहा था कि मुतालबा किया था कि कमीशन ऑफ इंक्वायरी को भेजा, वहाँ पर फॉर्म किया जाए टू इन्वेस्टिगेट द सेम थिंग। तो उसके लिए हमारी जो सी कोशिश होगी कि इस किस्म का जो एक दोबारा एक स्टेप जो एक नया एक इनिशिएटिव ले यूनाइटेड नेशंस इस बारे में। Thank you, Foreign Minister. You spoke detail about it and some of the questions. My question is, after this particular verdict of the Indian Supreme Court, the Indian political and military leaders got more power and strength now. So there will be more provocative statements against Pakistan.
and India is also approaching general elections next year. So how to counter this Indian propaganda provocative statements? Are you going to take any special diplomatic initiative so that the world may not accept their false narrative and story against Pakistan? And on record, Indian Defense Minister just a couple of weeks back publicly said we will snatch JJK from Pakistan. So situation has aggravated. What is your diplomatic strategy to push back India from making aggressive postures, provocative statements, and hard position against Pakistan and Jammu and Kashmir? Thank you. तीन हैदर साहब, जो कोई किसी भी नैरेटिव के पीछे जो एलिमेंट ऑफ क्रेडिबिलिटी होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, और जब एक मुल्क अपनी क्रेडिबिलिटी लूज़ कर जाए तो उसके बाद चाहे आप किसी किस्म का भी नैरेटिव सामने लेके आएँ, उसकी एक्सेप्टेंस नहीं होती। अब आप पिछले चंद बरसों से, चंद महीनों से, चंद सालों से जो आप देख रहे हैं कि इंडिया की क्रेडिबिलिटी वो इंटरनेशनल कम्युनिटी की नज़रों में बहुत हद तक गिर चुकी है, और उसकी एक गिरने की वजह एक जो उन्होंने एक दहशत गर्दी का और असैसिनेशन का जो जाल वो बुना था मुख्तलिफ ममालिक में, और जिसके सिलसिले में ना सिर्फ अमेरिका ने, कनाडा ने, बल्कि यूनाइटेड किंगडम ने उसके ऊपर एक्शन लिया है, और उनके जो रेलेवेंट जो उनके जो ऑफिशियल्स थे जो कि इन्वॉल्व थे हिंदुस्तान की हुकूमत के, तो उनको भी उन्होंने इंडाइट किया है। तो उससे उनकी जो क्रेडिबिलिटी वो बहुत हद तक मुतासर हुई है। तो मैं नहीं समझता कि कोई भी किसी किस्म का भी जो नैरेटिव आएगा, चाहे अभी आए इन रिएक्शन टू दिस जो जजमेंट आई है, या आने वाले दिनों में इन द रन अप टू द इलेक्शंस, उसकी कोई एक्सेप्टेबिलिटी होगी इंटरनेशनल कम्युनिटी की नज़र में। क्या आप समझते हैं कि जब वो कोई रास्ता उनको नहीं मिलेगा तो वो दोबारा मिलिटेंसी की तरफ जा सकते हैं? शुक्रिया जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि एक तो ये है कि कश्मीरी ने इंडियन रूल को तो कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया, और ये तमाम इंडियन ऑब्जर्वर्स भी यही कह रहे हैं कि 5 अगस्त 2019 के बाद तो तकरीबन 100% ही रिजेक्शन है इंडियन रूल की मकबूजा कश्मीर के अंदर। तो वो अपना एक ये, और फिर ये होता है कि जिस तरीके से गाज़ा के और फ़लस्तीन के मुसलमानों का जो रिएक्शन आया है, तो अल्टीमेटली इसी किस्म का रिएक्शन ही आएगा कश्मीरियों की तरफ से भी। तो मैं समझता हूँ कि ये तो हिंदुस्तान की हुकूमत को रियलाइज़ करना चाहिए कि आप अगर उनकी जो जायज़ हकूक़ हैं और राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन को, उसको अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो खामखा एक जो लावा उबल रहा है तो वो किसी न किसी सूरत में तो ज़ाहिर होगा ही। नहीं, अभी तक तो वही अपना जो पॉलिसी अडॉप्ट की थी हमने 5 अगस्त 2019 के बाद, उसी पे ही अमल पैरा है। सर, इस मामले में आलमी अदालत इंसाफ की जो जुरिस्डिक्शन है उस पर आप क्या कहेंगे? क्या ऐसा भी कोई गौर हो रहा है कि ये मामला अदालती मास पे तो जा चुका है, लेकिन आलमी सतह पर ये अदालती मास पे ज़्यादा दिखाई दे रहा है? देखिए जी, मैं आपको बताऊं कि वो अगर ये इतना सॉलिड केस है पाकिस्तान का कि पाकिस्तान किसी भी अगर अदालत में जाए जो कि एक न्यूट्रल हो अदालत हो, तो उसके अंदर इंडिया का केस बहुत ही कमज़ोर है कश्मीर के ऊपर। लेकिन इंडिया हमेशा आड़ लेता है प्रोसीजरल इश्यूज़ के ऊपर, और वो जुरिस्डिक्शन को अपना वो चैलेंज करता है। तो इसलिए वो जो आप कोर्स ऑफ एक्शन बता रहे हैं, तो हमें सिर्फ उस सूरत में ही वो उसको सोचना पड़ेगा अगर तो हिंदुस्तान एक्सेप्ट करता है उनकी जुरिस्डिक्शन। अगर वो नहीं करता उनकी, तो फिर वो
एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी ही होगी मेरे ख्याल के मुताबिक. जी, थैंक यू. अली हुसैन फ्रॉम द रिपोर्टर. सर, हिस्टोरिकली हमने वेस्टर्न वर्ल्ड का जो डबल स्टैंडर्ड है कश्मीर के मामले में हमने देखा है, जैसे यूएस हो गया, बाकी यूरोपियन कंट्रीज हैं वेस्टर्न, तो एक ऐसी सूरत हाल में कि उसी वेस्टर्न वर्ल्ड का डबल गजा में पूरी तरह से एक्सपोज हो रहा है इजरायली फोर्सेस. तो ऐसे वक्त में जिलानी साहब, ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी होगी कि जो दुनिया जो है, जो ऑलरेडी इतना मतलब पॉलिटिकली डिवाइडेड है, तो ऐसे वक्त में कश्मीर के लिए कैसे आप दुनिया को जो है सपोर्ट उनका जो है करा सकेंगे? थैंक यू. जी, आपने सही फरमाया, लेकिन उसके साथ साथ आप ये भी देखिए कि इस जो डबल स्टैंडर्ड्स के बावजूद एक जो सोच, एक नई सोच उभर रही है तमाम दुनिया में, सिर्फ खाली इस्लामिक दुनिया में नहीं बल्कि वेस्टर्न में भी, कैपिटल्स में भी ये सोच को, इस बात को सीरियसली कंसीडर किया जा रहा है कि एक टू स्टेट सॉल्यूशंस के बगैर इस मसले का हल नहीं हो सकता, और ये कि अगर उसका हल जल्द अज जल्द निकाला जाए ताकि उस वायलेंस को रोका जा सके तो वो बेहतर होगा. तो मैं समझता हूँ कि सिमिलरली कश्मीर के ऊपर भी ये, डिस्पाइट ये जो सी है डिविजन्स होती है, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, तो ये वाली चीज़ कि ये रियलाइजेशन कि कश्मीर के अवाम को उनका हक़ ख़ुद इरादियत, जिसके लिए यूनाइटेड नेशंस ने उनको प्रॉमिस किया था इन द शेप ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ कमिटमेंट, तो उसको भी इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है. अदरवाइज़ दो ममालिक जो कि जिनके दरमियान एक कोर इशू है कश्मीर, तो उसके दरमियान एक जो सीरियस जो एक पीस की जो एफ़र्ट्स है वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकती. और पीस मेरे अपने ख़्याल के मुताबिक एक ना सिर्फ इस खित्ते के लिए इम्पॉर्टेंट है बल्कि पूरी दुनिया के लिए इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज ऑफ द वेरियस फैक्टर्स, इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स दैट वी दे आर अवेयर ऑफ. सर, 75 साल से चाहे वो यूएन है या ओआईसी है, ये जो दोनों मुसलमानों के जो इशूज हैं फलस्तीन और कश्मीर, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन जो है पूरी तरह नाकाम रही हैं ये दोनों मसले हल करने में. अब भारत जो है वो 5 अगस्त के बाद के इक़दामात, और अब वहाँ पे भारतीय जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, अब पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान को हमेशा जो अपनी एक बात करता रहे, अब तोड़ को पाकिस्तान की तरफ से क्या इक़दामात किए जाएंगे ताकि भारत को इसी जगह पे रोक दिया जाए? बहुत जी बिल्कुल, अपना हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल दो टोक होगा. हम कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के साथ हम अपना उस मौक़िफ़ हमारा जो सा है वो कायम रहेगा. और दूसरा ये है कि जब तक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस को अमल दरामद नहीं हो सकता, उस वक्त तक हम पाकिस्तान जो सा है वो उनके कश्मीरी अवाम की जो मॉरल डिप्लोमेटिक सपोर्ट है वो जारी रखेगा. और मैं समझता हूँ कि इस मौक़िफ़ की बार बार जो एक है उसको रीइटरेट करने की भी बहुत ज़रूरत है, और ना सिर्फ कश्मीरियों के लिए बल्कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए भी. और मैं आपको एक और चीज़ भी बताऊँ कि कश्मीरियों को भी एहसास है कि पाकिस्तान बिल्कुल सॉलिडली कश्मीरी मौक़िफ़ के साथ खड़ा हुआ है, कश्मीरियों के मौक़िफ़ के साथ खड़ा हुआ है. और जब तक ये रेजोल्यूशन पे अमल दरामद नहीं होगा तो पाकिस्तान उनको अपनी कोशिशें वो जारी रखेगा. बैनुल-अक़वामी जो इदारे हैं OIC का मुतहदा उसकी जानिब से कोई कारकर्दगी सामने नहीं और हमारे सामने 2019 से अब तक जो स्पेशल स्टेटस के ख़त्म किया गया, हमारी बतौर स्टेट क्या कमजोरियाँ हैं कि हम इंटरनेशनल दुनिया को कायम नहीं कर सके.
दूसरी ये कि क्या इसमें कोई हकीकत है जो बात हल्कों में रिपोर्ट हो रही है कश्मीर में जो चेंजेस आ रही हैं बिहाइंड द डोर कोई मुज़ाकरात कम्युनिकेशन कोई नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस इस वक्त चल रही है? एक तो ये है कि मैं सच्ची बात यह है कि इस बात पे को एग्री नहीं करूँगा कि हमने इंटरनेशनल मीडिया को अप्राइज़ नहीं किया। मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनल मीडिया में 5 अगस्त 2019 के बाद जितनी कश्मीर के ऊपर कवरेज हुई है वो ग़ालिबन पहले शायद ही हुई होगी। और जितना भी अगर आप इंटरनेशनल प्रेस में बड़ा उसको रेगुलरली ना सिर्फ मॉनिटर करता हूँ बल्कि मैं कश्मीर रिलेटेड जितनी भी डेवलपमेंट्स होती हैं उसको कोलेट भी करता हूँ। जब मैं कंपेयर करता हूँ तो वो काफ़ी बेहतर जो इंटरनेशनल मीडिया के अंदर पाकिस्तान के जो एक पॉइंट ऑफ व्यू की रिफ्लेक्शन वो रेगुलरली आती रह गई है। दूसरा क्वेश्चन आपका था विद रिगार्ड टू अब्दुल्ला साहब बैकडोर जी कोई डायलॉग जो उनसे है तो इस वक्त कोई पाकिस्तान का या हिंदुस्तान के साथ कोई डायलॉग नहीं चल रहा जी। मेरी नज़रों से कोई ओझल नहीं है जी मैं आपको बता सकता हूँ। सर मैं ये जानना चाह रही हूँ कि ये जो आर्टिकल 370 का मामला है इसके ऊपर चाइना की भी रिजर्वेशंस हैं लद्दाख को लेकर, तो पाकिस्तान क्या चाइना के साथ मिलकर मुश्तरका तौर पर कोई स्ट्रेटजी बना सकता है? क्या आप उनको भी कांटेक्ट कर सकते हैं इस मामले के हवाले से या नहीं? सेकेंडली आर्टिकल 370 के पीछे इंटेंशन जो है गवर्नमेंट की, इंडियन गवर्नमेंट की, वो ये है कि वहाँ डेमोग्राफिक तब्दीली लाई जाए। अब इसके बाद आप क्या समझते हैं कि वो राह ज़्यादा हमवार हो जाएगी मोदी सरकार के लिए? एक तो नंबर वन मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूँ कि चाइना को भी बड़ी सीरियस रिजर्वेशन है पर्टिकुलरली ऑन द डिवीजन ऑफ द ये है अपना स्टेट, उनके कुछ कंसर्न्स हैं। और लेकिन ये है कि एज़ फार एज़ कोऑर्डिनेशन ऑफ पाकिस्तान पोजीशन तो पाकिस्तान अपने इंटरेस्ट को देखते हुए अपने एक लायामल वो अख्तियार करता है और उसके लिए आपको किसी और मुल्क के साथ कोऑर्डिनेट करने की ज़रूरत नहीं होती। पहले तो मादत थोड़ा ताकि हो गई मुझे आने नहीं एफबीआई के डायरेक्टर इंडिया में है, वो जो अमेरिका में कत्ल की साजिश की थी भारत में एक दूसरा कमेंट करने से दूसरा ये लगता है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान तनाज़ा तो कश्मीर ही है, उसी तनाज़े की बुनियाद पर इंडिया को जब मौका मिलता है वो पाकिस्तान को इंटरनेशनल फोरस का लगेजने की कोशिश करता है। लेकिन हमें जब भी मौके मिलते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारी डिप्लोमेसी कोई ओरिजिनल स्टाइल जो है जो डिप्लोमेसी में होता है नॉर्मली और सॉफ्ट स्पोकन होते हैं और बड़ा दिखावटी सी दिखाई देती है। हम ऐसे मौकों से एग्रेसिव डिप्लोमेसी के लिए क्यों नहीं फायदा उठाते हैं? कम से कम आप मेरे से तो एक्सपेक्ट ना कीजिए कि मैं वो अपना लथार्जिक डिप्लोमेसी मैं उसमें बिलीव ही नहीं करता। आपको मालूम है मैं याद दिलाता रहूं कि मैं 2003 में जिस हालात में वापस आया था वो भी आप सबको याद होगा, वो अपना आपको याद होगा। और उसके बाद मेरी तो ख़ास तौर पे एक बहुत ही कश्मीरियों के साथ एक वाबस्तगी भी है और कश्मीर कॉज के साथ भी वाबस्तगी है, तो वो उस सिलसिले में आपको कोई फ़िक्र करने की बात नहीं है। आपने FBI डायरेक्टर की बात की, उनके विज़िट की, तो आपके आने से पहले मैंने उसी इशू के ऊपर एक जवाब दिया था मतीन हैदर साहब के सवाल के जवाब में कि कोई भी नैरेटिव हो, किसी भी मुल्क की क्रेडिबिलिटी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। अगर आपकी क्रेडिबिलिटी होगी तो ओनली देन आपका जो नैरेटिव जो आप बनाते हैं वही एक्सेप्टेबल होगा। इस वक्त जो इंडिया की जो क्रेडिबिलिटी है पूरी बैनुल-अक़वामी दुनिया के अंदर वो बिल्कुल ही लोएस्ट लेवल के ऊपर है बिकॉज ऑफ द असैसिनेशन अटैम्प्ट्स दैट जो उन्होंने कोशिशें की है, असैसिनेशन की है, और उसके बारे में एक बड़ा गम और गुस्सा पाया जाता है पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर। तो उसमें इस हालात में उनकी क्रेडिबिलिटी बिल्कुल ही नहीं उनके नैरेटिव की रही। तो ये एस्पेक्ट भी जो सहना ज़हन में रखने की ज़रूरत है। जी जाहिर साहब। गिलानी साहब, एक तरफ हम देखते हैं समझौता एक्सप्रेस का फैसला हो, बाबरी मस्जिद का हो, अजमल साहब का हो, या इस तरह के आज फैसले आए हैं, एक लंबी तारीख है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं
अक़वाम मुत्तहिदा के जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो भी बेबस नजर आते हैं गजा के ऊपर। उनके स्टेटमेंट सबके सामने हैं। हमारे पास फिर क्या कहता है जो कनाडा ने कहा, अमेरिका के इंडिया के बारे में, अमेरिका ने कहा, यूके ने कहा, तो क्या हम इन तमाम चीज़ों में उनके फैसले और ये चीज़ें जो अब आई हैं सामने, इनका भी कोई डोजियर बनाकर दुनिया को बता सकते हैं कि ये असल हकीकत है इंडिया की? देखिए जी, बात यह है कि ये जो कनाडा में हुआ या यूके में हुआ या अमेरिका के अंदर हुआ, ये तो मैं समझता हूँ कि ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। अभी बहुत ही राज अफशा होंगे। मैं आपको इस बात का यकीन दिलाता हूँ, क्योंकि ये असैसिनेशन अटेम्प्ट्स या और असैसिनेशन जो उनमें हिंदुस्तान मुलव्वस रहा है, ये सिर्फ इन 3 ममालिक तक कन्फाइन नहीं रही थी, इसका दायरा कार बहुत ममालिक पे है। और आप बहुत जल्द सुनेंगे कई और ममालिक भी जो से हैं वो दे विल आल्सो कम फॉरवर्ड विद सिमिलर इंफॉर्मेशन about India's role in various killings which have taken place in their respective countries. अब हमारे पास क्या बचेगा? इसके अलावा जो वीटो की है गजा के ऊपर जो रेजोल्यूशन थी, अमेरिका ने यूके ने अटेंड नहीं किया, तो इतने ममालिक मिल के भी जो यूएनएससी को बोरी का सके करारदाद मंजूर नहीं करवा सकते। तो इस वक्त हमारे पास क्या बचा? क्योंकि मजीद आने वाले दिनों में लगता है ऐसे ही है कि कशीदगी बढ़ेगी और जो इलेक्टेड गवर्नमेंट पाकिस्तान में आ रही है वो भी लगता यही है कि आने वाले दिनों में, आने वाले 4-5 साल में मजीद तीसरी मरतबा मोदी गवर्नमेंट आ रही है, तो हालात तो मजीद बिगड़ेंगे दोनों ममालिक में। मैं आपको बताऊं जी कि ये जिस तरह मैंने पहले बताया कि हिंदुस्तान ने तो इस पूरे अरसे में पिछले 75 साल में कई दफ़ा कोशिश की कि किसी तरीके से ये जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो एजेंडा है, इस एजेंडा आइटम को ख़त्म कर दिया जाए। उन्होंने बड़ी एक दफ़ा कोशिश की कि यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान जो कि 1948 में बना था, उसको भी ख़त्म किया जाए, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हुआ। उसमें कामयाब इसलिए नहीं हुआ कि जो उनका जो नैरेटिव था कश्मीर के बारे में, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं थी इंटरनेशनल लेवल पे, चाहे वो ममालिक जिस किस्म की पोजीशन लें, बिकॉज आजकल कुछ और पॉलिटिकल कंसिडरेशन आ जाती है जिसकी वजह से आपको एक या खामोश रहना पड़ता है या आपको। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि इस किस्म के जो इश्यूज होते हैं उसके अंदर जिस तरीके से कश्मीरी वो एक डिटर्मिन्ड हैं अपनी आज़ादी के लिए, अपने राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए, तो मुझे पूरा का पूरा यकीन है कि वो एक दिन ज़रूर आएंगे। बिल्कुल उस तरीके से ज़रूर अब उनको वो उनका मकासद हल होंगे जिस तरीके से मुझे पूरा का पूरा यकीन है कि फ़लस्तीनी अवाम को भी उनको यूनाइटेड नेशंस की करारदादों के मुताबिक उनको ज़रूर उनका हक़ मिलेगा। तो मुझे तो अब ये मैं समझता हूँ कि जो कश्मीरियों ने जिस तरह की स्ट्रगल दिखाई है 1947 से लेके, ये बल्कि उससे पहले की भी 75 साल गुजर चुके हैं, हिंदुस्तान भी तो उनकी स्ट्रगल को सप्रेस नहीं कर सका ना। बल्कि अगर आप आज भी कश्मीर के अंदर मकबूजा कश्मीर में आगे जाके हालात को देखें तो आपको एक वहाँ पर एक प्रिजन वाला जो सा है एटमॉस्फेयर मिलता है वहाँ पर। अगर तो हिंदुस्तान इतना कामयाब होता या जिस किस्म का उसका नैरेटिव बन रहा है तो वहाँ पे सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट होती। आपको एक और भी चीज़ बताऊँ कि वहाँ पर डिस्पाइट द फैक्ट कि हिंदुस्तान ने उसको बिल्कुल एक प्रिजन के तौर पे बना के रखा हुआ है, कुछ ना कुछ जो वहाँ की डिप्लोमेटिक कम्युनिटी है वो वहाँ पे जा बाज़ औक़ात चली जाती है, जो डेली बेस्ड जो उनसे डिप्लोमेट्स हैं, तो वो भी अपने अपने ममालिक को एक रिपोर्ट भेजते हैं कश्मीर की सिचुएशन के बारे में, और उसके बारे में उनकी जो होती है असेसमेंट वो कोई इतनी पॉजिटिव नहीं होती हिंदुस्तान की जो एफर्ट्स के बारे में। This concludes our briefing.
Thank you very much for all of you for coming and for the Foreign Minister to spare some time. Thank you.